Hello and welcome as we advance our discussion on demand forecasting. We've been talking about demand forecasting and methods of forecasting the demand. Now in methods we classified the demand forecasting methods into two, qualitative and quantitative. Quantitative are generally used where we have past data available, while qualitative are used more often in cases where we do not have any past data. Now, in absence of past data, I do not have data. I do not have any trend or time series on which I can forecast. So, what I do is I go in for qualitative data that we have discussed in other lectures. Then in our journey towards quantitative methods, in quantitative methods, up till this point we have talked about naive approach, a very basic approach. Then we talked about moving averages, simple averages. In moving averages also we talked about simple moving average and weighted moving average, and today we will start our discussion on exponential smoothing. Now, as we see, we advanced from naive method to simple average. From simple average we move to simple moving average. From simple moving average we move to weighted moving average. Now one thing is for sure, if you have done these questions in copy, then you can flip your pages and see that one thing is for sure, that as we progress along these methods, our forecasts become more and more competitive. Our forecasts become more and more close to the actual demand. This was a very basic method. The forecast could have gone in either direction because it was not taking any calculations into considerations. This was a very lazy, lethargic method because as data grows, this becomes a very lazy method. It does not give us good values. Then in moving averages, we overcame this laziness of huge data. But in that also, this was a very simple basic method. It was giving equal importance to yesterday, day before yesterday, and the day before the day before yesterday. So all 3 days were given similar kind of average weightage. So we moved on to weighted moving averages, where we saw that the recent past is more likely to influence today. Yesterday is more likely to influence today as compared to day before yesterday. So that we have talked in weighted moving average. The idea is, as we are advancing through these methods, the methods are getting more powerful, more logical. In this series, the next powerful method is exponential smoothing. What is exponential smoothing? In a sense, it is extension of weighted moving average, but in weighted moving average also we used to give importance to yesterday and then day before yesterday and then the day before yesterday. That was the idea. But in exponential smoothing, what we do is we give a fair bit amount of importance to yesterday's data, previous data. Yesterday in the sense previous data, कि जैसे कि आज हम जनवरी में बैठे हैं तो दिसंबर के डेटा को इंपॉर्टेंस देंगे. So we give importance to the previous data and we also give importance to the previous forecast. Now what is this idea? This idea is, suppose we have days 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now actuals, and then there is forecast. Fine. So now suppose the actual suggest first day, because very first day we are not sure कि कितनी डिमांड आने वाली है. तो लेट अस से कि फर्स्ट डे हमने कुछ फोरकास्ट नहीं किया और हमारे पास एक्चुअल्स कितने आए, 10 का आ गया. नाउ अब मैं नाइव मेथड यूज करता हूं एक बार जस्ट समझने के लिए.
एक बार जस्ट समझने के लिए कि व्हाट डू वी मीन बाय वेरियस टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, क्या है कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का। अब अगर मैं नाइव मेथड यूज करता हूं तो मेरा नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट कितना होने वाला है 10। नेक्स्ट पीरियड लेट अस से मेरे पास डिमांड आ जाती है 15, तो नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट कितना होएगा 15। नेक्स्ट पीरियड लेट अस से मेरे पास फोरकास्ट डिमांड आ जाती है 14 की, तो नाइव मेथड क्या कहता है नेक्स्ट पीरियड का हमारा फोरकास्ट कितना हो जाएगा 14। अगर इस तरह से चलता रहा कि डिमांड आती गई नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट बनाते गए, डिमांड आती गई नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट बनाते गए, अब जब आपका 30 का आ गया है, इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, हमारी सारी एक्चुअल्स कैसी आ रही हैं 15, 12, 14, 15, 12, 13, मतलब करीब करीब 12 से लेके 14, 15 तक की रेंज की आ रही है मेजॉरिटी। एक छोटी थी वो तो शुरुआत रही होगी, मेजॉरिटी यहीं आ रही है। ये किसी कारण से 30 आ गई है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये वाकई में मेरा डेटा इतना ग्रो हो गया है या ये किसी कारण से अचानक से एक स्पाइक आ गई है। अब नाइव डेटा क्या करेगा, यहां पे कितनी वैल्यू दे देगा 30 की दे देगा। नाइव तो क्या करता है, जो पिछले पीरियड का एक्चुअल है उसको इस पीरियड का फोरकास्ट बना देता है। t-1 का एक्चुअल था, वो पीरियड t का फोरकास्ट बन गया, इतनी सी बात है। दिस इज वेयर एक्सपोनेंशियल मेथड स्टेप्स इन। एक्सपोनेंशियल मेथड क्या कहता है कि अगर आपको फोरकास्ट चाहिए फॉर पीरियड t, इफ यू नीड फोरकास्ट फॉर पीरियड t, तो इसने जो फोरकास्ट है उसको दो में स्प्लिट कर दिया है। एक तो कर दिया है एक्चुअल्स ऑफ t-1 और दूसरा कर दिया है फोरकास्ट ऑफ t-1। मतलब अगर आपको फोरकास्ट ऑफ पीरियड t चाहिए तो आप क्या करो, उससे t-1 पीरियड में चले जाओ। जैसे कि अभी 7th पीरियड का आपको फोरकास्ट चाहिए, नाइव मेथड ने तो दे दिया आपको 30 का, नाइव मेथड ने तो दे दिया। लेकिन ये मेथड क्या करता है कि अगर आपको यहां का फोरकास्ट चाहिए तो आप क्या करो, पिछले पीरियड में चले जाओ और पिछले पीरियड का एक्चुअल भी लाओ और फोरकास्ट भी लाओ। इसका मतलब ये क्या है, t और t-1 अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो इफ आई विश टू फोरकास्ट f7, अगर मेरे को f7 चाहिए तो वो क्या होगा 7-1 दैट इज a6 और f6। इसका मतलब मेरे 7th पीरियड की फोरकास्ट जो होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी, जो पिछले पीरियड की फोरकास्ट थी और पिछले पीरियड का एक्चुअल था, दोनों पे डिपेंडेंट होगी। कितनी डिपेंडेंट होगी किस पे, मैंने आपको बताया दैट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज इन अ सेंस एक्सटेंशन ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज। तो किस पे डिपेंडेंट होगी, वो यहां पे हमने डाल दिया एक अल्फा, where this alpha is smoothing constant, स्मूथिंग कांस्टेंट, स्मूथिंग कोफिशिएंट, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये जो स्मूथिंग कोफिशिएंट है, स्मूथिंग कांस्टेंट है, वो कौन है, अल्फा। पहली बात, नाइव क्या कर रहा था, प्रीवियस पीरियड की एक्चुअल को ला रहा था और जोड़ के दे रहा था। इवन फॉर दैट मैटर एवरेजेस क्या कर रहे थे, प्रीवियस पीरियड्स के एक्चुअल्स को ला रहे थे, जोड़ के यहां रख रहे थे। सिंपल एवरेज क्या करता है, इन सब का एवरेज लेकर के दे देता। मूविंग एवरेज होता तो क्या करता, इन सब का एवरेज लेके दे देता, आइदर सिंपल और वेटेड, आइदर बेस। वो करता क्या, एक्चुअल्स को लेता। बट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पहला ऐसा मेथड आया है जो कि प्रीवियस पीरियड का एक्चुअल भी लेता है और फोरकास्ट भी लेता है। उसका फर्क क्या पड़ता है, लुक हियर, ये 30 जो है इसका तो मैं नहीं जानता क्या होगा, तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। लुक एट दिस डेटा, हम किस तरह के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 12, 14, 15, 16, 12, 14, 15, 16 के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारा आगे आने वाला टाइम भी कैसा चलने वाला है, करीब करीब इसी स्लैब में चलेगा, 12, 14, 15, 16 के स्लैब में ही चलेगा। नाइव ने क्या कर दिया, यहां पे ला करके 30 रख दिया। फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था उसने कर दिया कि यहां पे 30 रहेगा। बट लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि अगर इतने पीरियड्स तक डेटा ऐसा रहा है
तो आगे भी शायद ऐसा ही रहना चाहिए। तो लॉजिक सेज कि जैसा डेटा पास्ट में था वैसा ही डेटा आगे भी रहना चाहिए। बट एक आया तो है ना एक्चुअल 30 का, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो लॉजिक सेज के सर हम कहीं ना कहीं 14, 15, 16 में ही रहते हैं, बट द फैक्ट इज कि पिछली बार हम 30 पे भी गए हैं। तो दिस मेथड यूजेस बोथ वैल्यूज। व्हाट डू वी मीन बाय बोथ वैल्यूज? एक्चुअल्स ऑफ पीरियड 6 कितना है? 30। तो ये इस 30 को भी इंपॉर्टेंस देगा। F7 क्या करेगा? 30 को भी इंपॉर्टेंस देगा और F6 को भी इंपॉर्टेंस देगा, मतलब पिछले पीरियड की जो फोरकास्ट थी उसको भी इंपॉर्टेंस देगा। दिस इज द आइडिया ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। यस, एक अल्फा और लगाना है, और अल्फा क्या है? स्मूथिंग कोफिशिएंट या कांस्टेंट। यू कुड आइदर कॉल इट कांस्टेंट और कोफिशिएंट। है तो वो स्मूथिंग कोफिशिएंट, लेकिन हमारे एक बार कैलकुलेशन के अंदर वो कांस्टेंट फिक्स हो जाता है, तो हम उसको कांस्टेंट ही रखते हैं। तो वी कैन इवन कॉल इट स्मूथिंग कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए, हम तो बड़े स्टेबल से एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे थे, लेकिन ये 30 आ गया, तो ये 30 लग तो इररेलेवेंट रहा है। 30 आया, वेरी ट्रू, 30 आया, वेरी ट्रू, लेकिन ये लग तो इररेलेवेंट सा ही रहा है। जनरली हम रहते किन लेवल्स पे हैं? इन लेवल्स पे। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट डिजायर क्या होगा कि इस 30 को इग्नोर कर दें। इस 30 को इग्नोर करने का मतलब क्या होगा? ये अल्फा कितना हो जाए? 0 हो जाए। मतलब पूरा इग्नोर करना है, तो अगर मैं अल्फा 0 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, और मेरा जो F7 आ रहा है, मतलब इस पीरियड का जो फोरकास्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? पिछले पीरियड का फोरकास्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, कि जब स्टेबल एनवायरनमेंट्स में है और अगर हम अल्फा बहुत छोटा ले लेते हैं तो ये क्या करता है? एक्चुअल्स को इग्नोर करने लग जाता है और फोरकास्ट पे रिलाई करने लग जाता है। और अगर आप डायनामिक में रह रहे हैं, जैसे कि अब हम यहां पे एक रूल निकाल सकते हैं। क्या रूल निकाल सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर stable environments and alpha is equal to 1 for dynamic environments। अब हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, हमारे पास तो एक फॉर्मूला आया है कि फोरकास्ट फॉर पीरियड टी इज अ वेटेड समेशन ऑफ एक्चुअल ऑफ प्रीवियस पीरियड एंड फोरकास्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड। 7th पीरियड की जो फोरकास्ट आप तैयार करने जा रहे हो, इट विल बी सम वेटेड समेशन ऑफ एक्चुअल ऑफ 6th पीरियड प्लस एक्चुअल ऑफ फोरकास्ट ऑफ 6th पीरियड। तो 6th पीरियड का फोरकास्ट भी चाहिएगा और 6th पीरियड का एक्चुअल भी चाहिएगा, तब जाकर के ये आएगा। F7 इज सम वेटेड समेशन ऑफ एक्चुअल 6 एंड फोरकास्ट 6। व्हाट सम समेशन? वो वेट क्या है? वो अल्फा है। और वो अल्फा कैसे डिसाइड होता है? ये एक्सट्रीम केस है, हम ना तो अल्फा को 0 रखते हैं ना अल्फा को 1 रखते हैं। दीज आर एक्सट्रीम केसेस, दीज आर ब्लैक एंड व्हाइट। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट, कुछ भी इतना स्ट्रिक्टली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। जनरली क्या होता है, ये तो एक्सट्रीम्स हैं, हम इसके कंटिन्यूम के बीच में कहीं ना कहीं रुकते हैं। तो ये एक्सट्रीम केसेस तो 0 और 1 हो गए। इनको समझने के लिए 0 और 1 लिखते हैं, अदरवाइज ये इनके बीच में रहेंगे। अदरवाइज मैं रूल क्या बना सकता हूं? इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अल्फा इज इक्वल टू 1, मैं क्या कहूंगा आपसे रूल को? अल्फा इज हाई फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स। हाई का मतलब क्या हो गया? जब 0 से 1 की रेंज है हमारी, तो हाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? 0.7, 0.8, 0.9। और इसको अल्फा इज इक्वल टू 0 कहने के बजाय मैं क्या कहना प्रेफर करूंगा? अल्फा इज स्मॉल और लो, क्योंकि 0 और 1 तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। इतना एक्सट्रीम जनरली हम वैल्यूज लेते नहीं है, हम क्या लेंगे? इनके बीच में लेंगे, क्योंकि ना तो हम ऐसे स्टेबल में होते हैं। ऐसे स्टेबल में होने का मतलब क्या है? 10 10 10 10 10 10 10 10 डेली 10 यूनिट्स। इतने स्टेबल मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, कोई भी जना ऑपरेट नहीं करता है। ना ही इतना डायनामिक एनवायरनमेंट के एक दिन 10, दूसरे दिन 2000, अगले दिन 400, अगले दिन 10,000, अगले दिन 300, ऐसा भी नहीं होता है। तो ना तो हम बहुत ज़्यादा स्टेबल में रहते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायनामिक में रहते हैं। तो इसलिए हम 0 1 नहीं रखते हैं। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट अस पुट एज 0 1। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टेबल में रहते हो तो 0 रख दो,
क्या मतलब हुआ, इस 30 को हटा दें तो ये काइंड ऑफ स्टेबल एनवायरनमेंट्स थे, 12, 14, 16 उसी रेंज के अंदर घूम रहे थे। तो अगर ये स्टेबल थे तो हम यहां क्या करना चाहेंगे, अल्फा को 0 रखना चाहेंगे। अल्फा को 0 रखने का मतलब क्या होता है, अल्फा 0 इंटू एक्चुअल ऑफ प्रीवियस, और अल्फा को अगर 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म तो बन गई 0। 1 माइनस 0 इज 1 इंटू 16। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉशियसली, वेरी केयरफुली। हमारा सबमिशन ये है कि अगर स्टेबल एनवायरनमेंट्स में है तो अल्फा को 0 रखें, स्टेबल एनवायरनमेंट्स में इसका मतलब ये 30 गलत है। तो अब मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप इग्नोर हो रहा है। कैसे इग्नोर हो रहा है कि स्टेबल एनवायरनमेंट्स में अल्फा इज सजेस्टेड टू बी वेरी हाई। वेरी हाई करते ही क्या हो गया, अल्फा को 1 रख दें, एटमोस्ट यही रख सकते हैं। तो जैसे ही अल्फा को 1 रख दिया, सॉरी स्टेबल के अंदर 0 रख दें, तो 0 रखते ही क्या हो गया, ये 1 माइनस 0 16। अल्टीमेटली बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट्स के अंदर, जैसा कि अभी हमने किया है, F7 बिकम्स इक्वल टू F6, क्योंकि अल्फा को तो आपने 0 रख दिया, तो ये क्या बन गया, 1 इंटू F6, तो F7 बिकम्स F6। इसका मतलब स्टेबल एनवायरनमेंट्स में जो आज की फोरकास्ट है वो क्या होती है, पीछे की फोरकास्ट। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि जो पीछे की फोरकास्ट आई है वो किसी न किसी लॉजिक पे बेस्ड आई है। सी डिमांड किसी कारण से वेरी हो सकती है, डिमांड किसी भी अब्रप्ट रीजन के कारण बढ़ सकती है, अचानक कम हो सकती है। लेकिन कल का जो मैंने डेटा रिलीज किया था, कल का जो मैंने फोरकास्ट रिलीज किया था, उसमें तो काफी पीछे की कैलकुलेशन गई होगी, क्योंकि F6 में F5 ने रोल प्ले किया होगा। फॉर्मूला ही ऐसा है, जब आपने फोरकास्ट 6 बनाया होगा तो फोरकास्ट 5 उसके अंदर होगा, फोरकास्ट 5 के अंदर फोरकास्ट 4 ने रोल प्ले किया होगा। इसका मतलब फोरकास्ट इज मोर रिलायबल, क्योंकि वो पीछे के सारे डेटा को भी यूज कर रही है, लेकिन वो सारे डेटा को ब्लाइंडली यूज नहीं कर रही है, सिंपल एवरेज नहीं कर रही है, वो पीछे के डेटा को बड़ा लॉजिकली यूज कर रही है। किस तरह के लॉजिक से, कि एक अल्फा डिसाइड किया हमने, ये तो हमारे को पता ही होता है कि हमारी इंडस्ट्री का अल्फा हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये तो हमारे को आइडिया होता है कि हम डायनामिक इंडस्ट्री में रहते हैं या स्टेबल में रहते हैं। कोई जना अगर क्लोथिंग के अंदर है, कोई जना अगर फूड इंडस्ट्री के अंदर है, तो काइंड ऑफ स्टेबल डिमांड्स रहती हैं। वहीं पे कोई जना स्टेशनरी में तो थोड़ी सी अलग डिमांड्स रहती हैं। जनरली जुलाई के अंदर पेपर की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि नए सेशन शुरू होते हैं, नई बुक्स छापनी पड़ती है। मार्च अप्रैल के अंदर पेन्स की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि एग्जाम होता है, सब जने 2-2, 3-3 पेन एक साथ कैरी करते हैं। तो इसका मतलब अगर पेपर इंडस्ट्री में है तो हो सकता है डिमांड्स अलग हो। मोबाइल इंडस्ट्री में है तो डायनामिक डिमांड्स होती हैं, अचानक चेंज हो जाती है। कोई मोबाइल नया आता है तो अचानक बढ़ जाती है, फिर अचानक कम हो जाती है, फिर कोई दूसरा कंपनी अगर बढ़िया मोबाइल निकाल देती है तो आपके मोबाइल की सेल्स डिप हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। तो बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर चेंजेस होते हैं तो वी आर सजेस्टिंग अल्फा 1 रखें। इसी केस के अंदर लेट अस ट्राई व्हाट हैपेंस इफ अल्फा इज इक्वल टू 1। F7 निकाल करके देखते हैं। अल्फा 1 हो गया तो ये तो 1 हो गया। एक्चुअल्स ऑफ F6, यहां पे मैं इसको 0 लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ये आ गया अल्फा और ये आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू F6, ठीक है ना। अब हम दो चीजें ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या होता है। सबमिशन इज कि स्टेबल एनवायरनमेंट्स के अंदर अल्फा 0 रखो। अल्फा 0 रखने से क्या हुआ, हमने देखा कि F7 बिकम्स इक्वल टू F6। हमारा F7 कितना आया, 16, जो प्रीवियस फोरकास्ट था उतना। वहीं पे अगर हम बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट्स ले लेते हैं और अल्फा इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज 1, A6 कितना था, एक्चुअल्स ऑफ 6 30 प्लस 1 माइनस अल्फा को कितना रखा हुआ है, डायनामिक का इमेजिन कर रहे हैं हम कि अगर डायनामिक में होता तो क्या करते हैं, 1 माइनस 1 F6 कितना है, 16। ये कितना हो गया, 1 इंटू 30 प्लस ये तो बन गया 0
तो क्या यहां पे मैं अब एक कंडीशन लिख सकता हूं कि व्हेन अल्फा इज 0, when alpha is 0, ft becomes ft minus 1. When alpha is 0, या when we are in very stable environments, ft becomes ft minus 1. And when alpha is 1, when alpha is 1, इस केस में 1 लिया था, तो f7 कितना है आपका 30 क्या था a6. यहीं से देख सकते हैं हम वापस से, जैसे लास्ट टाइम देखा था हमने, क्या लेने का कोशिश कर रहे हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू a6, 1 माइनस 1 माइनस अल्फा, ये क्या बन गया, ये तो 0 बन गया, तो आपके पास क्या आ गया a6. f7 becomes equal to a6, that is ft becomes actuals of t minus 1. So the exponential smoothing is an improved version of सिंपल एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज. इसके अंदर एवरेज भी आ रहा है पुराना. नाउ द ब्यूटी इज मूविंग एवरेज सिर्फ एक विंडो का लेता है कि भाई 3 पीरियड का मूविंग एवरेज आ गया, उससे पहले का आ गया, उससे पहले का आ गया, तो वो एक सेक्शन का ही लेता है. लेकिन इसमें क्या होगा, 6 के अंदर 5 का फोरकास्ट इंक्लूड है, 5 के अंदर 4 का, 4 के अंदर 3 का, 3 के अंदर 2 का. तो इसका मतलब प्रीवियस सारे फोरकास्ट इंक्लूडेड है. ऐसा कब होता था, सिंपल एवरेज में होता था. लेकिन वो जो फोरकास्ट इंक्लूडेड हैं उनका वेट बराबर नहीं है. उनका वेट क्या है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है. और वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, आई विल डिसाइड. हम अपनी इंडस्ट्री का अल्फा चेक कर सकते हैं, या हम अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर मेरे को पास 8-10 पीरियड का डेटा आ गया है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग अल्फा लगा करके चेक कर सकता हूँ कि मेरी फोरकास्ट सबसे अच्छी कहाँ आ रही है. वो अल्फा मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा. इफ़ यू आर नॉट श्योर कि मैं स्टैटिक एनवायरनमेंट्स में हूँ या डायनामिक एनवायरनमेंट्स में हूँ, स्टेबल एनवायरनमेंट्स में हूँ या डायनामिक एनवायरनमेंट्स में हूँ, तो व्हाट वी कैन डू इज हम अलग अलग अल्फास ट्राई कर लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू 0.1 ट्राई कर सकते हैं, अल्फा 0.2 ट्राई कर सकते हैं, 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी ट्राई कर सकते हैं. जहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई ये दोनों डेटा एक जैसे आ रहे हैं, वो मेरे लिए बेस्ट अल्फा हो जाएगा. हाँ, एक जैसे तो नहीं आएंगे, डेविएशंस तो आएंगे, लेकिन जहाँ पे लगेगा कि डेविएशंस सबसे कम आ रहे हैं, जहाँ पे लगेगा कि एरर्स सबसे कम आ रहे हैं, वो मेरे लिए बेस्ट अल्फा हो जाएगा. फाइन. और ये एरर्स अभी हम देखेंगे कि भाई कैसे डिसाइड करें. तो हम अलग अलग अल्फाज की वैल्यूज निकाल लेंगे, अलग अलग अल्फा के हिसाब से फोरकास्ट निकाल लेंगे, और जहां पे मेरे को लगता है कि एरर सबसे कम है, दैट इज द बेस्ट अल्फा. सो दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज. तो वी कैन सी कि अब तक जितने मेथड्स देखे थे, ये उन सबको जोड़ देता है. इनफैक्ट अगर एक्सट्रीम केसेस ले लें, अल्फा इज इक्वल टू 0 या अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये नाइव मेथड बन जाता है. नाइव मेथड क्या है, पिछले को ले आओ. ये हो गया या नहीं. अगर हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो हमारे 7th पीरियड की फोरकास्ट क्या है, 6th पीरियड की एक्चुअल. यही तो होता है नाइव मेथड कि 7th पीरियड की फोरकास्ट क्या होगी, 6th पीरियड की एक्चुअल. तो एक्सट्रीम केसेस तो ये नाइव मेथड बन जाता है. और अगर आपने अल्फा को एक्सट्रीम पे नहीं रखा, 0 से 1 के बीच में कहीं रखा, तो वो सिंपल एवरेज भी है इन अ सेंस कि वो पीछे का सारा डेटा ला रहा है. वो वेटेड मूविंग एवरेज भी है इन अ सेंस कि वो जो प्रीवियस पास्ट है, जस्ट रिसेंट पास्ट है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और उससे पुराने को कम दे रहा है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कि ये सारे मेथड्स की जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी लेकर के आ गया. नाइव मेथड को इतना ज़्यादा बुरा मेथड नहीं है. अगर आप बिल्कुल ही इरेटिक मार्केट्स के अंदर रह रहे हो, जो कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, डेली चेंज होते हैं, तो फिर नाइव इज स्टिल बेटर. तो एक्सपोनेंशियल बिकम्स नाइव. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. तो होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब हम एक बार इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर्मली देखते हैं. बट द आइडिया अबाउट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज दिस. एक बार फिर से ये वाला सेक्शन में आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि अगर पकड़ में नहीं है ये बात तो फिर कोई मतलब नहीं है. तो विल टॉक अबाउट दिस थिंग वंस अगेन. हम यहां पे इसको 2 में बांट देते हैं. अल्फा इज इक्वल टू 0. हाँ, एक बात ध्यान रखना, आई एम टेकिंग एक्सट्रीम केसेस. हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में होगी. एंड हाउ डू वी डिसाइडेड, अगर एज अ स्टूडेंट हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है वो फाइनल है अल्फा की वैल्यू. और अगर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आप देख रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने डेटा के ऊपर अलग अलग अल्फाज ट्राई कीजिए. जिस अल्फा से ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर आने लग जाए, या इन दोनों के बीच का डेविएशन मिनिमम आने लग जाए,
that will be your alpha. That will be the alpha for your organization, that will be the alpha for your industry or business, जैसा भी आप कहना चाहें. दोनों केसेस देखते हैं. ये वाला केस कब यूज करते हैं हम? अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर वेरी स्टेबल एनवायरमेंट्स, और अल्फा इज इक्वल टू 1 कब यूज करते हैं? फॉर वेरी डायनामिक एनवायरमेंट्स. बहुत स्टेबल कौन से होते हैं? वेरी स्टेबल प्रोडक्ट्स, वेरी स्टेबल एनवायरमेंट्स कौन से होते हैं जनरली? क्लोथिंग इंडस्ट्री, और ग्रेन्स, अनाज जो होता है 12 ही महीने हम ऑलमोस्ट वैसा ही खाते हैं. मिल्क, या वेटनरी में फिर भी हम थोड़ा सा चेंज कह सकते हैं कि गर्मियों में एग का कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. अदरवाइज अगर हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट स्टेबल सा चलता है. और डायनामिक एनवायरनमेंट्स किस टाइप के हो जाएंगे? जो चेंज होते रहते हैं. चेंज होते रहने वाले कौन से हो जाएंगे? फैशन, क्लोथिंग. नॉर्मल जो क्लॉथ में अगर आप डील कर रहे हो तो वो तो स्टेबल है, लेकिन उस क्लॉथ से बनने वाली डिज़ाइंस जो हैं वो फिर कहाँ चली जाती हैं? फैशन में. कि एक टाइप की डिज़ाइन अभी बिक रही है, कल नहीं बिकेगी, हो सकता है. तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? फैशंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, क्योंकि आज की डे एंड एज में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जल्दी आउटडेट हो जाता है. बहुत जल्दी आता है, इंट्रोड्यूस होता है, शूट करता है, और फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है. तो यू कुड हैव थिंग्स लाइक फैशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया. तो आप चेक कर सकते हैं कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं. उस प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी इंडस्ट्री देख लीजिए कि अगर आप बहुत स्टेबल में, एकदम स्टेबल में है तो 0, एकदम डायनामिक में है तो अल्फा. अगेन हमारा अल्फा 0 और 1 नहीं होता है, हमारा अल्फा इनके बीच में होता है. अगर हम डायनामिक में तो बहुत डायनामिक होंगे, चेंज होता रहेगा, तो अल्फा 1 ले लेंगे. स्टेबल है तो ऐसा नहीं होगा कि 12 12 12 12 12 चलेगा. इट कुड बी 12 14 12 13 8 9 10 14 13. तो वो अब क्या है? काइंड ऑफ स्टेबल ही है एक ही लेवल पे. तो हम इधर आ गए. तो अल्फा इज 0 फॉर वेरी स्टेबल एनवायरमेंट्स, अल्फा 1 फॉर वेरी डायनामिक एनवायरमेंट्स. क्या होता है ऐसा ले लेने से? अगर आपने अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लिया तो एफ टी इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 इंटू ए टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0 एफ टी माइनस 1. ये तो 0 इंटू हो गया तो क्या बन गया? एफ टी. तो ये तो गया पूरा 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. ये 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1. तो इसका मतलब फॉर वेरी स्टेबल एनवायरमेंट्स एफ इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1. फायदा क्या होता है? हमारे को दिख रहा था कि ये स्टेबल एनवायरनमेंट है. अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता तो इस 30 को देख के हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे भी वैल्यूज कैसी आने वाली होंगी, शायद इस तरह की आने वाली होंगी. और अभी हम अगर 30 ऑर्डर कर देते तो उस 30 का करते क्या? भाई आज तो 30 आ गया, ये तो टाइम निकल गया. आगे आने वाले टाइम्स कैसे होने वाले थे? वापस ऐसे होने वाले थे. तो इसलिए हमने क्या किया? स्टेबल यूज किया. यस, बीइंग अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में आता है कि सर 30 नहीं होगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा. नो इश्यूज. अगर इस तरह का होने ही लग गया कि वाकई में वो ऊपर जाने लग गया तो हम इसको थोड़ी देर के अंदर कैच कर लेंगे. और यस, अगर वो कंसिस्टेंटली 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 200 हो गया, अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो उसके लिए भी हम इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, विच विल बी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड्स. तो वो एक आगे के एडवांसमेंट है. फॉर नाउ अगर इस तरह का है तो हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज कहाँ हैं? 14 16 14 16 14 16 इस तरह की हैं. एक 30 यहाँ आकर के नाइव मेथड अगर यूज कर रहे होते तो हमारे को एक गलत फोरकास्ट दे देता. भाई जब 30 निकल गया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो गुजरी बात हो गई. अब क्यों आप 30 पे जा रहे हो? व्हेन यू नो कि आपका लेवल तो कितना है? 14 16 का है. सो वी मेक यूज ऑफ दिस मेथड. और अगर यहाँ पे वेरी डायनामिक में आ जाए, जहां पे हमने अल्फा को 1 कर दिया है, तो यहां पे एफ टी क्या बन जाता है? 1 इंटू अल्फा ऑफ टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एफ ऑफ टी माइनस 1. तो ये क्या होगा? ये तो कंप्लीट बन गया ए टी माइनस 1. ये बन गया 0, तो ये तो टर्म गई. ये हमने देखा था कि वेरी डायनामिक एनवायरमेंट्स में ये क्या करता है? फोरकास्ट को इग्नोर करता है. छोड़ो इसको, हम तो वही देखेंगे जो पिछली बार हुआ था. तो वेरी डायनामिक में क्या हो गया?
अपन फोरकास्ट के साथ चलते जाएंगे। ये तो हमने देखा ही था कि एक्सट्रीम केसेस में इट कन्वर्जेस डाउन टू नाइव, अदरवाइज इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सिंपल एवरेज, क्योंकि ये सारों को ऐड करता है किसी न किसी छोटे वैल्यू में, और क्योंकि वो वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वेटेड का भी एक एलिमेंट रखता है। सो दिस इज अ कंपेरिजन कि अल्फा छोटा लेते हैं कब, व्हेन वी आर इन स्टेबल एनवायरनमेंट्स, व्हेन वी आर इन डायनामिक हम अल्फा 1 लेते हैं। इन स्टेबल एनवायरनमेंट्स अगर अल्फा 0 ले लिया तो एफ टी बिकम्स एफ टी माइनस 1, और अगर अल्फा 1 ले लिया तो एफ टी बिकम्स ए टी माइनस 1। मतलब जो 7th पीरियड की फोरकास्ट होगी वो क्या बन जाती है, 6th पीरियड की एक्चुअल बन जाती है। तो ये कुछ हमारा हुआ कि ये किस तरह से ये मेथड चलेगा, अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस 1। अब हम एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये फोरकास्ट कैसे आएंगी। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अंदर हमारे को फर्स्ट पीरियड की फोरकास्ट भी दी हुई होगी और फर्स्ट पीरियड का एक्चुअल भी दिया हुआ होगा। अभी जैसे कि मैं आपको ये मेथड दे देता हूं कि नाइव मेथड से इसकी फोरकास्ट बताओ, तो नाइव मेथड में तो डेटा इतना ही आएगा, और नाइव मेथड में आप फोरकास्ट कैसे करोगे, ये वाली फोरकास्ट इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। जो एक्चुअल्स हैं वो अगले पीरियड की क्या बनते जा रहे हैं, फोरकास्ट बनते जा रहे हैं। तो नाइव के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी द क्वेश्चन, डिटरमिन फोरकास्ट यूजिंग नाइव मेथड। तो आपने सीधा क्या कर दिया, ये यहां लिया है 10, 15, 14, 12, 16 एंड सो ऑन। फाइन, ये नाइव मेथड हो गया। और अगर हम सिंपल एवरेज देख रहे होते तो किस तरह से आता, फर्स्ट पीरियड का तो कुछ आना ही नहीं था क्योंकि एवरेज हुआ ही नहीं अभी कुछ, लेकिन अब एवरेज कितना आता, जितने भी निकले पीरियड्स उनका एवरेज, एक ही पीरियड निकला है तो 10/1। अब जो हम फोरकास्ट करेंगे उसमें पीरियड्स कितने निकल चुके हैं हमारे, आई विल मेक यूज ऑफ समथिंग एल्स जिससे कि हमारे को ये दिखता रहे। आई विल मेक यूज ऑफ दिस बोर्ड। तो अब हमारे को यहाँ का फोरकास्ट करना है, तो इसके लिए डेटा कितना निकला है 10 and 15, तो ये 10 + 15/2 कितना हो जाएगा, ये 25/2, दैट इज 12.5। फिर अगर इधर आ जाते हैं तो नाउ वी हैव टू फोरकास्ट फॉर दिस, और डेटा कितना निकल गया है, ये सब निकल गया है। तो इसका हम कितना कर सकते हैं, 29 and 10, 10, 12, 14, थोड़ी सी गड़बड़ लिखे, चलो इन एनी केस कितना हो गया ये 29, 39, 39/3 दैट इज 13, 39, 41, 51, 51/4, 51/4 वुड बी 12.75। ये कौन सा हो गया हमारा, सिंपल एवरेज हो जाता। आज हम ये सब नहीं देख रहे हैं, आज हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इस फॉर्मूला से हम करेंगे। ये डेटा वापस से मैं वही ले आता हूँ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया है, जिससे कि हमारे को एक आइडिया लगे कि कौन सा मेथड बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। प्रीवियस में हमारे पास डेटा क्या था, 10, 12, 14, 19, 10, 12, 14, 19। अगेन आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप भी इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से करते जाएं। जहाँ कभी लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है या ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज लीव दैट प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स, वहाँ से हम डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई जो कि पकड़ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, तो हम उसको वापस से वीडियो बना सकते हैं, उसके ऊपर लेक्चर ले सकते हैं। सो आई हैव दिस डेटा जिसको हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करके देखता हूँ। एक, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट्स में रह रहा हूँ। डायनामिक एनवायरनमेंट्स में अल्फा कितना होना चाहिए, 1। फॉर योर केस इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन कि अल्फा 0.8 लेना है, 0.7 लेना है। हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार लेकर के देखते हैं कुछ भी। तो मैं एक बार तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.8। 0.8 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग कि बहुत डायनामिक है, हिलती रहती है, वैल्यूज चेंज होती रहती है। लेट अस अज्यूम सो। इन दैट केस हाँ, आपको क्या कहा है कि इसकी फोरकास्ट हमेशा गिवन होती है। फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फर्स्ट पीरियड का एक्चुअल और फोरकास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको दोनों नहीं दिए जाएं तो ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये तो दिए जाएंगे। सो आई हैव माई एक्चुअल्स एंड फोरकास्ट फॉर फर्स्ट पीरियड। अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूं तो वो क्या है, एफ टी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ AT-1 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ
एफ टी -1, अल्फा कितना डिक्लेयर कर चुके हम 0.8, तो हमारे लिए एफ टी क्या बन गया 0.8 एक्चुअल ऑफ t -1 प्लस ये क्या हो गया 1 - 0.8 दैट इज 0.2 एफ टी -1। अल्फा तो आ गया 0.8, क्वेश्चन में गिवन होगा, लेट्स से 0.8 दिया हुआ है तो ये हो गया। अब आपको क्या फोरकास्ट करना है F2, तो ये क्या हो गया t है 2 तो t -1 हो जाएगा 1 एक्चुअल ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा फोरकास्ट ऑफ 1, एक्चुअल ऑफ 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू 0.8 0.2 बन गया या नहीं हमारा वेटेड फॉर्मूला। वेटेड ऐसे ही तो किए थे हमने 0.5 इंटू प्रीवियस प्लस 0.3 इंटू प्रीवियस 0.2 इंटू प्रीवियस। चलिए कितना है हमारा एक्चुअल 10, 0.8 इंटू 10। नाउ ये जितना भी डेटा है ये आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो मैं वैल्यूज लिखूंगा वो हमने फाइंड आउट किए, तो 0.8 और ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 मेकिंग इट 8 + 2 दैट इज 10। तो मेरा फोरकास्ट कितना आ गया, सेकेंड पीरियड का भी इंसिडेंटली मेरा फोरकास्ट कितना आ रहा है 10। नो इश्यूज, आगे चलते हैं, पेन दूसरा लेते हैं जिससे कि थोड़े अलग दिखे अपने को। फोरकास्ट ऑफ पीरियड 3 विल बी, ये रहा हमने फॉर्मूला बना के रख लिया एक बार के लिए अपना। इस क्वेश्चन के लिए मेरा फॉर्मूला हमेशा के लिए क्या बन गया ये, क्योंकि अल्फा फिक्स्ड है 0.8, तो इस फॉर्मूला से अगर मैं लेता हूं तो F3 0.8 3 - 1 दैट इज A2 प्लस 0.2 F2। A2 कितना है 12, 0.8 इंटू 12 प्लस 0.2 इंटू 10 मेकिंग इट 9.6 प्लस 9.6 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 11.6। वैल्यू आ गई आपके पास, सेम कलर रखते हैं 11.6। फाइन, फिर अब आपको क्या फोरकास्ट करना है, F4 फोरकास्ट करना है। F4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.8 इंटू एक्चुअल ऑफ फोर्थ है तो थर्ड पीरियड आ जाएगा, 0.2 इंटू फोरकास्ट फॉर 3, फोर्थ पीरियड का फोरकास्ट है तो एक्चुअल ऑफ 3 एंड फोरकास्ट ऑफ 3, 0.8 इंटू एक्चुअल ऑफ 3 कितना है 14 प्लस 0.2 इंटू 11.6। तो इस बार अपन कैलकुलेटर उठा लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11.2, ये कितना आ जाएगा 2.32 मेकिंग इट 11 and 2 13.52। नेक्स्ट कौन सा पीरियड का फोरकास्ट चाहिए हमारे को, फिफ्थ पीरियड का। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद भी आप ये वैल्यूज निकाल करके देख लें, लेट अस से F5 F6 F7 आप खुद निकाल करके देख लें और फिर अपन यहाँ से टैली कर लेंगे। तो F5 क्या होना चाहिए 0.8 इंटू एक्चुअल ऑफ 4 प्लस 0.2 इंटू फोरकास्ट ऑफ 4, 0.8 इंटू एक्चुअल ऑफ 4 19 प्लस 0.2 इंटू ये कितना हो गया हमारे लिए 15.2 प्लस 2.704 मेकिंग इट 17.904। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 17.904। So you can see this is how we progress। वैल्यूज हमारे पास नई से नई आती जाएंगी। तो ये F5 तक आ गया है,
नाउ लेट अस फाइंड आउट F6 एंड F7. जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो F6 को तो यहाँ ले लेते हैं, F7 इधर कर लेंगे. F6 would be 0.8 into A5 plus 0.2 into F5. 0.8 into A5. A5 is 30. Actual of 5 is 30 plus 0.2 into 17.904. 17.904. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ रहा है, ये तो 24 हो गया, ये हो गया 17.9, 34, 35.8, 3.58, 24 एंड 3, 27.58. ये हो गया हमारे लिए 27.58. रिमेंबर ये पर्पल वाला हमारे पास क्वेश्चन था और ये ग्रीन जो है ये वैल्यूज निकाली है मैंने यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. एंड नाउ कैन वी हैव आवर लास्ट वैल्यू दैट इज F7. हाँ, इसके लिए ध्यान रखना कि हमारे को फर्स्ट पीरियड का एक्चुअल और फोरकास्ट हमेशा दिया ही जाएगा. एंड नाउ वी आर डाउन टू F7 विच विल बी 0.8 इंटू एक्चुअल ऑफ 6 प्लस 0.2 इंटू फोरकास्ट ऑफ 6. 0.8 इंटू 23 प्लस 0.2 इंटू 27.58. ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 और फिर है हमारे पास 27.58 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये हो गया 23.916. तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की वैल्यूज आई हैं व्हेन वी टुक अल्फा इज इक्वल टू 0.8 फर्स्ट केस. अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक केस छोड़ देता हूं. यू कैन सॉल्व दिस कंप्लीट क्वेश्चन यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.2. 0.2 तो बहुत छोटा हो जाएगा. लेट अस से आपको दे दिया जाता है अल्फा इज इक्वल टू 0.4. तो आप इस क्वेश्चन को वापस से कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0.4 से. तो उसमें फर्क क्या आएगा, 0.4 इंटू A1 प्लस 0.6 इंटू, तो मतलब एक तरफ अल्फा आ जाता है, बचा हुआ उधर आ जाएगा. 0.8 इधर आया तो 0.2 इधर आ गया. अब अल्फा 0.4 है तो दिस विल बी 0.6. तो आप इसको अपने आप करके देखें एंड अगर कोई क्वेरीज रहती है, अगर कोई डाउट्स लगते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट देम. आप उनको कमेंट्स के अंदर छोड़ दीजिएगा, अपन फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. बट आई होप ये क्लियर हुआ होगा. थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, एक बार फिर से आप इस लेक्चर को देखें, एक बार दो बार अच्छे से देखें, पॉज करके देखें, समझने की कोशिश करें. आइडिया इज कि एक्सट्रीम केसेस में 0 और 1 के केस में तो ये मेथड कहाँ आ जाता है, नाइव पे आ जाता है. सिंपल एवरेज का एलिमेंट इसमें है ही, क्योंकि ये सबको जोड़ रहा है. F7 के अंदर F6 है, F6 में F5 है, F5 में F4 है. तो जब मैं कह रहा हूं कि ये F5 है, उसके अंदर F4 तो इंक्लूडेड आ गया. जब मैं ये कह रहा हूं कि F6 है तो उसके अंदर F5 भी आया और F5 में F4 था. इसका मतलब F6 ऑलरेडी इंक्लूड्स F5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1 ऑल्सो. तो इसका मतलब ये वाली एट्रीब्यूट कहां से आ गई, सिंपल एवरेज है. लेकिन सिंपल भी नहीं रहा, वेटेड बन गया. तो इट हैज़ ऑल द गुड्स फ्रॉम ऑल द मेथड्स. जिसकी जो अच्छाई थी वो इसने अपने अंदर ले ली और एक बहुत ही केपेबल फोरकास्टिंग मेथड हमारे को मिल गया. अगेन इन फोरकास्ट को आप अपने प्रीवियस वाली जो फोरकास्ट है उनसे टैली करके देखना. प्रोबेबली ये फोरकास्ट सबसे नजदीक होंगी. दीज विल बी द बेस्ट फोरकास्ट्स. तो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन ऑन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक एन एडवांसमेंट इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड्स ऑल्सो. क्योंकि अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो हम इसको डायनामिक भी नहीं कहेंगे, एटलीस्ट इरेटिक तो नहीं कह सकते कि भाई कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है. इसमें तो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर आ रहा है कि भाई 20, 40, 80, 90, 200, 350, 570 तो लगातार बढ़ रहा है, या हो सकता है लगातार कम होने का ट्रेंड हो. तो वो जो ट्रेंड है कि भाई बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, तो उस ट्रेंड को भी कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि अगर आपके डेटा में ट्रेंड है तो ये एवरेज पूरे टाइम कैचअप ही करता रह जाएगा.
ये कभी भी पकड़ नहीं पाएगा एक्चुअल वैल्यू को, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो तो क्या कर रहा है, हर बार 100 को 200 बना रहा है, 200 को 400 बना रहा है, 400 को 800 बना रहा है। तो हम तो हमेशा एवरेज के हिसाब से, एक्चुअल वैल्यूज तो भाग रही हैं, हम एवरेज के हिसाब से अच्छा इसको मैच करने की कोशिश करेंगे, तब भी हमेशा क्या होगा, इससे दूर ही रह जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में भी ट्रेंड्स को डाल करके देखेंगे कि अगर डेटा के अंदर ट्रेंड दिख रहा है, अगर डेटा के अंदर ट्रेंड पकड़ में आ रहा है, तो हम जल्दी से उसको पकड़ने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट विल ट्राई इन नेक्स्ट लेक्चर। तो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।